Whereas ahead of International Yoga Day on June 21st, the Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh government is set to integrate yoga into daily governance and office culture with the implementation of the Y Break protocol. Acting on the Ministry of Ayush's guidance, the state has directed all government offices to implement the Y Break Yoga protocol. Now, this official notification mentions that the initiative not only upholds India's yogic heritage, but also promotes a stress-free, healthier work environment by making yoga breaks a regular part of the daily routine. So what does this Y Break norm entail? Let's explain it to you. Now, Y Break is a short duration yoga session specially designed for office and desk workers. Lasting 5 to 10 minutes, it includes light movements targeting the neck, back, waist, along with deep breathing and some mindfulness exercises. Its idea or the goal is to reduce mental fatigue, release physical stiffness, refresh the mind and restore focus as well as energy. Awareness campaigns will be run to ensure these tools are actively adopted by employees and the general public. We have my colleague Adeep joining us live for more on this particular story. Adeep, give us more details as far as this new initiative by UP government is concerned. Well, definitely, Hina, see, the Uttar Pradesh government is set to induct the Y Break into all the government offices, and in fact, for this, they have directed the Ayush Ministry, and the Ayush Ministry will be informing all the government offices that a break of at least 5 to 10 minutes is given to each and every government officer so that they can practice yoga. This comes ahead of the International Yoga Day, and the UP government believes that the yoga is very essential in the day-to-day life. And for this, the Uttar Pradesh government led by Chief Minister Yogi Adityanath, they have given the direction that the Ayush Ministry will be conducting this, and they will oversee that this directive is being implemented in each and every government offices in the state. Now, the Samajwadi Party has hit out at the government. They are taking a dig at the government for inducting a 5 to 10 minute Y Break. And in fact, the Samajwadi Party leaders went on to give out different opinions. And in fact, the Samajwadi Party leader, former MP S.T. Hassan, has also objected to the Y Break that is being inducted by the UK government, Hina. Right. Adeep, request you to stay on with us. We have a cleric joining us on the broadcast, Maulana Shahabuddin Rizvi. Good afternoon. हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं ये नए इनिशिएटिव की जो बात हो रही है, Y Break, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है? ये योगा के सिलसिले में बात कर रही हैं आप? जी. तो देखिए, योगा तो एक अच्छी चीज है, और योगा दरअसल उर्दू में हम इसको वर्जिश कहते हैं. और ये वर्जिश जो है वो इंसानी जिस्म के लिए, चाहे मर्द हो या खवातीन हो, सबके लिए बेहतर है और अच्छा है. गवर्नमेंट ने इसको आगे बढ़ाया है, और गवर्नमेंट ने चाह रही है कि योगा दिवस जो है इंटरनेशनल पैमाने पर मनाया जाए, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए. हम भी ये कहते हैं कि योगा मनाया जाना चाहिए. योगा डे नहीं, बल्कि रोजाना योग करना चाहिए आदमियों को. और हम तो मदरसे वालों को भी अपील की है कि मदरसे के लोग भी अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तलबा को जो है योगा कराएं. मगर इसमें जो नमाज के सिलसिले में बात है कि अगर किसी ने नमाज पढ़ ली, या कोई नमाज के लिए 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए छुट्टी पे चला गया, तो गवर्नमेंट आपत्ति करने लगती है, उसके लिए जांच पड़ताल शुरू हो जाती है. ये तो तरीका गलत है. और जब योग दिवस मनाने के लिए आप टाइम टेबल का इंतखाब कर सकते हैं, दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, और कोई आपत्ति नहीं है, तो नमाज के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए. शहाबुद्दीन रिजवी जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, समझी भी, दर्शकों ने भी आपको सुना. आपने जब अपना जवाब देना शुरू किया तो आपने हमें कहा कि उर्दू में वर्जिश कहते हैं इसको. तो यहाँ पर अगर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वर्जिश या फिर योगा की बात कर रहे हैं, किसी भी नाम से आप उसे पुकार सकते हैं, तो उसमें रिलीजन तो नहीं आता है कहीं पर भी. लेकिन जब आप नमाज की बात करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात कर रहे हैं, एक रिलीजियस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं. आपको नहीं लगता ये जो पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं दोनों के बीच में, ये गलत है? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. और जो लोग भी योगा के सिलसिले में या
एतराज करते हैं कि ये एक मजहब का हिस्सा है, ये खास सनातन धर्म का हिस्सा है, तो इसको मजहब के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसको जो है सिर्फ एक वर्जिश के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए। और अगर पीछे सूफिया की, सूफीज्म की तालीम की ताल्लुक से अगर देखेंगे तो वहां पे भी आपको योगा मिलेगा। तो योगा जो है वो मजहब के एंगल से न देखा जाए। तो जो लोग इस मामले को लेकर अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो गलत है, उन्हें इसके साथ में नमाज ब्रेक को नहीं जोड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि दो चीजें हैं, एक है मजहब और एक है यानी कोई किसी चीज का अमल। तो ये योगा जो है वो एक अमल है, और अमल को हिंदी में कहेंगे कार्यक्रम, यानी अपनी सेहतमंदी के लिए, अपने आप को दुरुस्त और चुस्त रखने के लिए एक अमल है। तो वो हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, सारे मजहब के मानने वाले कर सकते हैं। और अगर इसको तो मजहब एंगल से जोड़ देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आपत्ति होगी, एतराज होगा। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। किसी का मजहब इजाजत देता है, किसी का मजहब इजाजत नहीं देता है। इसलिए योगा को जो है मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जी, शहाबुद्दीन रिजवी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम यही कह सकते हैं जो बात आपने कही वो शायद पॉलिटिशियन स्पीच सुने, खास करके ऑपोजिशन के जो कंपैरिजन ऑलरेडी ड्रॉ कर रहे हैं योगा ब्रेक का नमाज ब्रेक के साथ। वी हैव विद अस अनदर गेस्ट जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। वी आर इन फैक्ट जॉइन्ड बाय अखिलेश प्रताप सिंह ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से देखते हैं ये जो योगा ब्रेक की बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? नहीं, योगा ब्रेक, पीटी ब्रेक, एक्सरसाइज ब्रेक, ये करते रहे, अच्छी बात है, लोग करते ही हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान हर कोई देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले कर्मचारियों की परमानेंट नियुक्ति का ध्यान देना चाहिए। ये आयुवास करके ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 15 लाख एम्प्लॉइयों में करीब 7-8 लाख ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय बची हैं, बाकी सब आउटसोर्सिंग पे हो गए हैं योगी मोदी जी के आने के बाद। और आउटसोर्सिंग में भी करप्शन है, और इतने कम पैसे पर आउटसोर्सिंग हो रही है। तो जो लोगों को इतने कम सैलरी पे रख रहे हैं और परमानेंट नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो काम कब करेंगे? जी, तो आप एक और मुद्दा भी उठा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि योगा ब्रेक से फिलहाल कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ लोग जो है इस योगा ब्रेक को नमाज ब्रेक के साथ जो है कंपेयर कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? वो बिना मोदी जी और योगी जी को हिंदू मुसलमान किए कहाँ कुछ होना है आप लोगों को? तो नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने कंपेयर किया है नमाज ब्रेक को योगा ब्रेक से। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? देखिए, हमारी राय सीधी सी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को परमानेंट नौकरी दें। वो तो आप एक अलग मुद्दा उठा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन ये जो मुद्दे के लिए जिसके लिए हमने आपको फोन किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो नान मुद्दों पे हम बहुत ज्यादा नहीं करते। अच्छा, ये आपके लिए करती हैं वो नान मुद्दे हैं, एक अहम मुद्दा नहीं है। मुद्दा है, आप बोलने नहीं दे रही हैं। चलिए बोलिए, आप मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे हैं, आप दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं। ये कौन सा मुद्दा है? इससे क्या भला होना है? किसी का भला होना है? अरे भाई, अगर आपको इतनी चिंता है अपने एम्प्लॉयों की तो अस्थायी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? ये ड्रामेबाजी करना और मीडिया में ड्रामेबाजी करवाना ये बंद करो। यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं है। आपको लगता है ये जो योगा ब्रेक की बात हो रही है एक ड्रामेबाजी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? ऑल राइट, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, मिस्टर Akhilesh Pratap Singh. Appreciate you joining us here on Times Now and sharing with us your perspective. Now, viewers, this Y break or yoga break norm in Uttar Pradesh has triggered sharp political reactions as well. Some of the reactions you just heard. Now, let's tell you how the Samajwadi Party has reacted. Samajwadi Party leader ST Hassan was quick to make the namaz break analogy. He is asking, why is the BJP promoting Y break when it is against a namaz break? He also added that namaz posture is akin to yoga postures. His party colleagues like Manoj Yadav are of the view that BJP is using Y break as a pretext to set the tempo for other RSS events. Listen in.
ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात हो रही है कि ऑफिस में आप ब्रेक दे दें। योगा डे के लिए योगा तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज, जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेज हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सब हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हर जगह हिंदू भाइयों को उकसाकर उनको धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लेने की तरकीब है। लगातार इस तरह की बातें जब से मोदी जी सत्ता में बैठे हैं ये करती और कहती नजर आ रही है बीजेपी भी, और बीजेपी के संगठन भी। कभी योग का बहाना होगा, कभी आरएसएस का कर्मचारियों के साथ मीटिंग का बहाना होगा, कभी इस तरह की चीजें ये ध्यान भटकाने के लिए हैं। मुद्दे देश के बहुत सीधे और सरल हैं, वो चाहे फिर नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबके जो हक अधिकार है उनकी बात आरएसएस नहीं करती, बीजेपी नहीं करती, सिर्फ पूंजीपतियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस तरह की बातें कहकर देश के मुद्दों को भ्रमित करने की कोशिश न की